Hello and good morning, students. Welcome to our online session of English. So, students, today we are going to discuss the fifth means last part of the chapter 13 of our English grammar book, that is adverbs. So, students, finally we have completed our chapter of adverbs, means we have finished our explanation, and in this chapter we have discussed all the kinds of rules related to adverbs. We also read about various kinds of adverbs, position of adverbs, formation of adverbs, and comparison of adverbs. So finally today we are going to start our working zone, means exercise of this chapter. So let's begin the chapter with its continuation. So students, now we are going to start the working zone of the chapter. So students, I have explained all the chapter of the adverbs. So chapter is finished now. So now we are going to start the exercise of the chapter. So first question is that correct the following sentence with the correct use of adverbs. So हमें adverb का correct use करते हुए sentence को rewrite करना है. Means पहले correct करना है फिर उन्हें rewrite करना है. So first sentence is I have had any respect for her. So I have had any respect for her. इस sentence का कोई meaning नहीं निकल रहा है. So students, जब हम chapter read कर रहे थे तो हमने hard भी पढ़ा था और hardly भी पढ़ा था. तो हार्ड और हार्डली हमने दोनों ही पढ़े थे और कहीं ना कहीं दोनों ही एडवर्ब्स थे, लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट था. तो हार्ड का मीन्स था डेलिजेंटली और हार्डली का मीन्स था स्केर्सली, मीन्स मुश्किल से. तो ये जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं हार्डली के साथ सूटेबल फिट हो रहा है. तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट करेंगे. आई हैव हार्डली एनी रिस्पेक्ट फॉर हर, मीन्स की मुश्किल से आपके पास उनके लिए कोई रिस्पेक्ट है. तो आई हैव हार्डली एनी रिस्पेक्ट फॉर हर. तो फर्स्ट सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आई हैव हार्डली रिस्पेक्ट फॉर, I have hardly any respect for her. So students, तो first का आंसर क्या हो जाएगा? I have hardly any respect for her. Now the second question is that she rarely is very kind to the poor. So sentence का जो formation तो कहीं ना कहीं position सही नहीं है. तो sentence में adverb की position को हम सही करेंगे. Then we will rewrite the sentence. She is rarely very kind to the poor. She is very she is rarely very kind to the poor. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? She is rarely very kind to the poor. Okay students. Now third sentence, I speak to him rarely. So इसमें भी adverb की position गलत है. rarely का use last में किया गया. It is not good. So sentence में position को सही करेंगे and sentence को rewrite करेंगे. I rarely speak to him. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा? I rarely speak to him. Okay students, now the fourth sentence is my friend only died last year. So इस sentence में only की position गलत है तो हम only की position को change करेंगे. So हमारा आंसर हो जाएगा did my friend died last year only. My friend died last year only. Okay students, now the next question is that my brother advised me to work hardly for distinction. सो यहाँ पर जो एडवर्ब है वो है हार्डली. तो हार्डली की जो पोजीशन है हार्डली गलत भी है. तो हार्डली को हम चेंज करेंगे. हार्डली के प्लेस पे आ जाएगा हार्ड. मीन्स वर्क हार्ड करते हैं कि हार्डली करते हैं? तो वर्क तो हार्ड होता है, न कि हार्डली होता है. तो इसलिए हार्डली जो है वो वर्ड ही गलत है. तो हार्डली के प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा? हार्ड. सो माई ब्रदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर डिस्टिंक्शन. माई ब्रदर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड फॉर डिस्टिंक्शन. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हार्डली का क्या हो जाएगा? हार्ड. तो हार्ड भी तो एक एडवर्ब भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट भी हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड की वर्क हार्डली? वर्क हार्ड होता है हमेशा. So students, now the sixth sentence is I have written a letter to her last week. So students, ये sentence कहीं ना कहीं last, जिस भी sentence में past वाले words आते हैं तो last हो गया, yesterday हो गया, तो ऐसे sentence में हमेशा past indefinite का use करते हैं. ठीक है, तो मैंने ऊपर एक रूल लिख दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है जिस भी सेंटेंस में लास्ट वर्ड, येस्टरडे वर्ड और अगर आपको एगो वर्ड मिल जाता है तो इन सेंटेंस में हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं. कौन से सेंटेंस का यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट का. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट, सो इस सेंटेंस में हम क्या कर देंगे? लास्ट वर्ड देखा तो हमने सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया. आई रोट अ लेटर टू हर लास्ट वीक. आई रोट अ लेटर टू हर लास्ट वीक.
तो इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट 7th नंबर सेंटेंस है आई सॉ हर ऑन लास्ट ईयर। सो आई सॉ हर लास्ट ईयर, ऑन इसमें से रिमूव हो जाएगा, आई सॉ हर लास्ट ईयर। ओके स्टूडेंट्स। So students, now the 8th number question is my auntie is arriving on tomorrow। तो ऐसे सेंटेंस में arriving on tomorrow, तो on का यूज तो यहाँ पर सही नहीं है, प्रीपोजिशन का यूज होना ही गलत है यहाँ पर। So my auntie is arriving tomorrow, my auntie is arriving tomorrow। Okay students, so on यहाँ से हट जाएगा। Now the 9th number sentence is I told her to sincerely work hard for promotion। I told her to sincerely work hard for promotion। So I told her to work hard। work hard होता है। I told her to work hard sincerely। sincerely की पोजीशन चेंज हो जाएगी यहाँ पर, जो sincerely की पोजीशन है वो गलत है, इसकी sincerely की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो सेंटेंस हो जाएगा I told her to work hard sincerely for promotion। I told her to work hard sincerely for promotion। Okay students, now the 10th number sentence is you are advised to not insult the poor। सो स्टूडेंट्स, हमेशा नॉट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में है टू नॉट इंसल्ट है, तो वो गलत है। तो हम इस सेंटेंस को सही करेंगे, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। सो सही आंसर क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज he stepped on a co-passenger's toys by chance and apologized immediately। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट डाउन द आंसर, ही स्टेप्ड बाय चांस, ही स्टेप्ड बाय चांस ऑन अ को-पैसेंजर टॉयस एंड apologized immediately। okay students, he stepped by chance, he stepped by chance on a co-passenger toys and apologized immediately। okay students, I just repeat the question answer, he stepped by chance on a co-passenger twice and apologized immediately। Okay, students. So, students, now the second number question is fill in the blanks with the correct use of adverbs in the blanks। तो इन sentences में हमें सही form of adverb का use करना है, correct form of adverb का use करना है। So let's begin the first question। I hate coming dash late की lately, तो आंसर हो जाएगा हमारा late। I hate coming late, मुझे लेट आना पसंद नहीं है। I hate coming late। So first का आंसर क्या हो जाएगा late। सेकंड सेंटेंस है my brother returned dash from office today। लेटली की लेट, तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा माई ब्रदर रिटर्न लेट फ्रॉम ऑफिस टुडे। माई ब्रदर रिटर्न लेट फ्रॉम ऑफिस टुडे, मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें उस एडवर्ब को फिक्स करना है, मतलब जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके उसके रीडिंग के अकॉर्डिंग जो फिक्स बैठ रहा है, उसके यूजेस के अकॉर्डिंग जो फिक्स बैठ रहा है, हमें उसे प्रॉपर्ली वहां पर फिट करना है। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज आई हैव नॉट बीन टू नागपुर डैश लेट की लेटली, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लेटली। आई हैव नॉट बीन टू नागपुर लेटली। आई हैव नॉट बीन टू नागपुर लेटली। मोस्टली आप देखेंगे कि लास्ट वाले में लेटली लग रहा है, जब लास्ट में फिक्स करना है, और मिड में आ रहा है तो लेट आ रहा है। ओके, नाउ द फोर्थ सेंटेंस इज हैव यू सीन प्रिया डैश लेट की लेटली। हैव यू सीन प्रिया लेटली, तो फोर्थ सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा लेटली। हैव यू सीन प्रिया लेटली। ओके स्टूडेंट्स। Now students, the fifth question is I had dash closed the book when my father returned। Hard की hardly, so I had hardly closed, मतलब मैं मुश्किल से बुक को क्लोज कर पाया जब मेरे फादर आ गए, रिटर्न आ चुके थे। तो हार्डली, तो फिफ्थ सेंटेंस में प्रॉपर्ली सेंटेंस क्या बन रहा है हार्डली के अकॉर्डिंग। हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हार्डली। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस इज शी हैज बीन लर्निंग हार्ड टू नो द मीनिंग ऑफ द पोएम। वर्क हार्ड होता है, लर्न हार्ड होता है, ठीक है, किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद करना होता है ना। तो शी हैज बीन लर्निंग हार्ड टू नो द मीनिंग ऑफ द पोएम, ठीक है। तो 8th 6th सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा हार्ड। नाउ द 7th सेंटेंस इज वी हैव बीन वर्किंग डैश सिंस मॉर्निंग। वर्क हार्ड होता है, हमेशा से समझाया है मैंने, आपको एक्सप्लेन किया है। सो वी हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। 7th सेंटेंस में क्या आ जाएगा हार्ड, वी हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। नाउ द 8th number sentence is I tried verb hard but failed in my attempt। I tried verb hard but failed in my attempt। तो 8th वाले सेंटेंस का आपका आंसर क्या हो जाएगा हार्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो 8th वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका हार्ड। नाउ द सी नंबर क्वेश्चन वी विल स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सी नंबर क्वेश्चन इज दैट fill in the blanks
with the correct alternatives given in the brackets. So in sentences में हमें correct form of adverb का use करना है, correct alternative का use करना है. Now the first question is there is dash rains this year. No की not. तो यहाँ पर रहेगा there is no rain this year. There is no rain this year. There is no rain this year. Now the second sentence the coffee is dash cold. Fairly की rather. तो इस sentence में आपका आ जाएगा rather. The coffee is rather cold. The coffee is rather cold. Second का आंसर क्या हो जाएगा rather. Now the third sentence is it is dash foolish of Seema to give up her teaching. It is rather foolish of Seema to give up her teaching. It is rather foolish of Seema to give up her teaching. तो third sentence का आंसर हो जाएगा rather. Now the fourth sentence is Swati is a fairly beautiful girl. रादर तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, तो यहाँ पर क्या आएगा फोर्थ वाले सेंटेंस में फेयरली. स्वाति इज अ फेयरली ब्यूटीफुल गर्ल. तो फोर्थ सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फेयरली. नाउ द फिफ्थ सेंटेंस इज प्रीति कैन प्ले द फ्लूट फेयरली वेल. प्रीति कैन प्ले द फ्लूट फेयरली वेल. तो फिफ्थ सेंटेंस का आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा फेयरली. नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस इज हिज फाइनेंशियल पोजीशन इज रादर वर्स दिस ईयर. His financial position is rather worse this year. तो सिक्स्थ वाले सेंटेंस का आंसर हो जाएगा rather. Now the sixth sentence answer is rather. Now the seventh number question is it is rather an attractive salary. It is rather an attractive salary. तो seventh number sentence का आंसर हो जाएगा rather. Okay students. Now the eighth number question is the college bell has just been rung. The college bell has just been rung. तो एट्थ वाले सेंटेंस का आंसर है जस्ट. आई जस्ट रिपीट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. फर्स्ट का आंसर है नो, सेकंड का रादर, थर्ड का रादर, फोर्थ का फेयरली, फिफ्थ का फेयरली, सिक्स्थ का रादर, सेवेंथ का भी रादर एंड एट्थ वाले का हो जाएगा आपका जस्ट. ओके स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको हेल्पिंग के लिए क्लू बॉक्स भी दिया गया है, तो इन क्लू बॉक्स की हेल्प से आपको फिलअप करना है और सूटेबल एडवर्ब को फिल करना है. तो इसी अकॉर्डिंग जैसे हमने बी और सी क्वेश्चन किया तो इसी अकॉर्डिंग हम डी क्वेश्चन करेंगे. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी डैश पैक्ड आवर बैग्स एंड लेफ्ट फॉर स्कूल. तो इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा हरीडली. आपने बहुत तेजी से अपना बैग पैक किया और स्कूल के लिए चले गए. सो वी हरीडली पैक्ड आवर बैग्स एंड लेफ्ट द स्कूल. स्टूडेंट्स आप स्पेलिंग इस क्लू बॉक्स में से देखकर लिख सकते हैं. ओके तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा हरीडली. Okay, we hurriedly packed our bags and left for school. Now the second question is Shekhar dash gave all his pocket money to the blind man. तो देखो Shekhar willingly gave all his pocket money to the blind man. Shekhar willingly gave all his pocket money to the blind man. मतलब कि शेखर ने अपनी इच्छा से अपनी पूरी पॉकेट मनी उस ब्लाइंड मैन को दे दी. शेखर willingly gave all his pocket money to the blind man. willingly सेकंड का आंसर है willingly. Now the third question is we must learn to decline invitations politely. तो थर्ड सेंटेंस का इन्विटेशन कैसा देना चाहिए, पोलाइटली देना चाहिए है ना. तो पोलाइटली थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा पोलाइटली. ओके स्टूडेंट्स. नाउ द फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉक एंड वी लिसन टू इट अटेंटिवली. जब भी कोई इंटरेस्टिंग टॉकिंग होती है तो बिल्कुल आप अटेंटिवली बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं. तो फोर्थ सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा अटेंटिवली. ओके स्टूडेंट्स. तो फोर्थ सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का अटेंटिवली. ओके स्टूडेंट्स अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम है तो आप क्लू बॉक्स में से देखकर लिख सकते हैं. अगर आपको क्लियर भी नहीं दिख रहा है तो आप जो मेरी वॉइस है उसको सुनकर भी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है सारे सेंटेंस आपको. तो फोर्थ वाले का आंसर है अटेंटिवली. नाउ द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज डॉक्टर सेड योर लेग्स वुड ग्रेजुअली इंप्रूव विथ रेगुलर एक्सरसाइज. ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इंप्रूव होना. ठीक है. तो फिफ्थ वाले सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा ग्रेजुअली. डॉक्टर ने क्या कहा कि आपकी जो लेग्स हैं वो धीरे धीरे रेगुलर एक्सरसाइज के साथ इंप्रूव हो जाएंगे. तो फिफ्थ वाले सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा ग्रेजुअली. ओके स्टूडेंट समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियरली. ओके नाउ द सिक्स्थ सेंटेंस इज आई एम लेट बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली सम विजिटर्स केम होम. ओके स्टूडेंट तो सिक्स वाले का आंसर क्या हो जाएगा अनएक्सपेक्टेडली. ओके आई एम लेट बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली सम विजिटर्स केम होम. So student, it was all about the chapter adverbs. So students, adverb chapter हमने पूरा read कर लिया. With exercise we have finished the chapter. So finally हमारा unit test का syllabus जो है वो finish होता है. Okay students, it was very interesting and good chapter. ये बहुत अच्छा chapter था. We have read. So we have finally finished the adverb chapter. So इस chapter में हमने काफी सारे adverbs के बारे में पढ़ा. adverbs की positions के बारे में सारी चीजें adverbs के बारे में हमने पढ़ ली.
So it was all about the good chapter. So students, thank you very much. Okay students.